friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see chapter number 7 of science, that is diversity in living organism. So let me give you a quick summary or you can say checklist of this chapter कि क्या क्या आने वाला है और किस टॉपिक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये बहुत ही लंबा चैप्टर है बायोलॉजी का और ये लास्ट चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक साइंस आफ्टर टेंथ और उसमें भी अगर बायोलॉजी लेने वाले हो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग biodiversity and classification, then regions of megadiversity, then we will be studying classification. वो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर दोज क्लासिफिकेशन. देन वी विल बी सीइंग क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, then hierarchy of classification which is very 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 important. Then we will be seeing five kingdom classification which was given by John Whittaker. वो हम लोग जब देखेंगे तब मैं बताऊंगा. देर आर फाइव किंगडम और वो कौन से किंगडम है. वन इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगाई, थर्ड इज प्लांटे एंड फोर्थ इज एनिमेलिया. देन वो किंगडम प्लांटे और एनिमलिया में और भी बहुत सारे अंदर पार्ट्स देखने को मिलेंगे. सो किंगडम प्लांटे की अगर बात की जाए तो किंगडम प्लांटे कंसिस्ट ऑफ अगेन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, एंड क्रिप्टोग्राम, राइट, फेनोग्राम, ओके, देन जिम्नियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब देखेंगे. एंड देन इन किंगडम एनिमलिया वी विल बी सीइंग अगेन मेनी टाइप्स ऑफ योर व्हाट वी से फाइलास. लाइक अगर हम लोग बात करें तो देर आर पोरीफेरा, then Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata, Protochordata. Then we will be seeing Vertebrata. In Vertebrata, again, there are lots of things like species, amphibians, reptilians, eels, mammalians, etc., etc. And last but not the least, we will be seeing nomenclature. एंड उसके अंदर सब टॉपिक है योर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ओनली थ्री मेजर टॉपिक्स. वन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. उसके अंदर जो उसका सब टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे रीजन्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी. देन वी विल बी सीइंग क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशंस के बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती है क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट topic which we will be seeing is classification and evaluation. ठीक है, evaluation. So let us begin with our chapter 7. So as you all know, on earth there exists a large diversity of living organisms from massive blue whale of 100-meter to the microscopic bacteria, from transparent or colorless worms to the brightly colored birds and flowers, from mosquitoes that live for few days to pine trees that exist for 1,000 years. So there are number of diversity you will find on earth, which includes massive blue whale to small bacteria which cannot be seen with our naked eyes, from transparent or colorless worms to colorful birds and flowers, from mosquitoes to which can live for few days or even अगर आप लोगों ने मॉर्टिन वगैरह स्टार्ट कर दिया तो for few hours, ठीक है, and to pine trees which lives for thousands of years. Thus, it can be said that living forms vary enormously, and in order to study them more precisely, it is necessary to classify them into different groups on the basis of similarities and differences.
एज यू ऑल नो, अगर वापस मैं बता दूं, ये पूरा पूरा चैप्टर रीड नहीं करूंगा, बट आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो है समझ में आप लोगों को चैप्टर आ जाएगा, एक भी चीज या एक भी टॉपिक हम लोग मिस आउट नहीं करेंगे. नाउ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. The term biodiversity was coined by, ये खास याद रखना कि ये वर्ड किसने दिया था, वॉल्टर जी रॉजन. वॉल्टर WALTER जी रॉसन in 1986. It actually means the diversity of life forms found in a particular region. Diverse lives forms share the same environment and are affected by each other, and also characteristics of land, water, climate, and so on. As a result, a stable community of different species came into existence. तो जनरली बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ये उसका मतलब है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं. डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं, सेम एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट सब कुछ जो है वो अफेक्ट होता है अलग अलग हिस्सों के हिसाब से. बट फाइनली एज अ रिजल्ट a stable community of different species came into existence. Now, let us go with region of mega diversity. What do you mean by region of mega diversity? Then there are some warm and humid tropical regions of earth. हम लोगों ने SS चैप्टर 17-18 में सब देखा है कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, कौन सा क्लाइमेट उनको फेवरेबल है वगैरह, ठीक है. Between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, where there is a rich diversity of plants and animals. These areas are known as mega diversity. So mega diversity is the region on the earth between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn where number of animals and birds are there, or you can say animals and plants are there. That's why they are considered as the region of mega diversity. अब वो मेगा डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज कौन से हैं? The one is Brazil, then Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, Zaire, Madagascar, Australia, China, India, Indonesia, Malaysia, where more than half of the planet's biodiversity is concentrated. तो ये सारे कंट्रीज में जितने प्लांट्स के स्पीसीज है उसके मोर देन हाफ ये सारी कंट्रीज में आपको मिलेंगे. अगेन मैं कंट्रीज के नाम रिपीट कर देता हूं: ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, ज़ेर, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड एक्वाडोर. ओके. Now, what do you mean by classification? यहाँ पे सीधा ऐसा दे दिया है कि what is the basis of classification, but let me explain you what is mean by classification. Okay, so the method of arranging organisms in groups or sets on basis of their similarities and differences is called classification. आप लोग अपने घर में भी बुक्स को क्लासिफाई करते होंगे. आपके पास ढेर सारी बुक्स है 9th स्टैंडर्ड की ही, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है. साइंस की डाइजेस्ट, साइंस की एग्जाम्पलर, साइंस की ऑल इन वन, साइंस की टेक्स्ट बुक, फिर एसएस की बहुत सारी 4-5 बुक्स होंगी, इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स होंगी. तो आप लोग किस तरह से उसको सेट करते हो आपके कबर्ड में, ठीक है. तो पहले तो इंग्लिश चैप्टर मतलब इंग्लिश की सारी बुक्स लेंगे, फिर लेंथ हाइट के हिसाब से अगर आप लोग कबर्ड सेट करते हो तो सबसे लॉन्गेस्ट या जो लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट होगी वो सबसे नीचे रखोगे, ठीक है. उस हिसाब से आप लोग क्लासिफिकेशन करते हो. तो thus the same thing is in science also. What do you mean by classification? The method of arranging organisms into groups according to their similarities and differences. तो उसको हम लोग बोलेंगे classification. Okay. Now, what are the advantages of doing classification? अगर हम लोग classification कर रहे हैं तो उसका advantages क्या है? So first, it gives information regarding the existing diversity of plants and animals. आप लोग दिमाग में है ना वो चीज याद रखो
बुक्स वाली, तो आपको पता चलेगा कि ये इंग्लिश की मेरी सेपरेट कंडीशन है, इंग्लिश के बाद ये मेरे साइंस की कंडीशंस है, मतलब साइंस के बुक्स है, फिर उसके बाद मेरे को एसएस के ही मिलेंगे, और लास्टली मुझे मैथमेटिक्स का मिलेगा। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Then second, it makes the study of wide variety of organisms convenient। ठीक है, ये भी एक खास याद रखना कि अलग अलग वैरायटी कन्वीनियंटली आपको पता चल सके। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कहाँ से इवॉल्व हुआ है उसका पैटर्न हम लोगों को पता चलता है। एंड देन इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस लाइक इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी ही है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पता चलेगा कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और इसको कौन से सेक्शन में हम लोग पुटअप करेंगे, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोजियोग्राफी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया एंड अदर ऑल्सो। ठीक है, सो in this way classification can be done. Now you might have heard about the scientist Aristotle. The Greek scientist Aristotle classified animals according to their habitats, habitats मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, as to whether they live in land or in water or in air। तो एनिमल्स को भी उन्होंने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है कि वो पानी वाले एनिमल्स हैं या हवा में उड़ने वाले हैं या फिर वो अपने लैंड पे रहने वाले हैं। दिस वॉज मिसलीडिंग कंसेप्ट एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन शेयर द सेम हैबिटेट। और ये कंसेप्ट फिर मिसलीड हुआ क्योंकि बर्ड्स, ठीक है, ऐसे हैं कि जो बर्ड्स जो है वो लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है, और हवा में भी उड़ सकते हैं। तो ये मिसलीड हुआ, इसकी वजह से फिर ये कंसेप्ट को कैंसल कर दिया गया था। बट उनने उनको अगर हम लोग कोरल्स या वेल्स या शार्क्स की बात करें, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी में ही रह सकते हैं। फिर we can immediately see that these are very different from each other in numerous ways। तो फिर इनका जो कंसेप्ट था कि जो एनिमल्स है वो 3 जगह पे अलग अलग रह सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, तो वो कंसेप्ट गलत हो गया था। एंड therefore a new thing has developed, and that is the another topic of this chapter, and that is कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ। इन ऑर्डर टू क्लासिफाई अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या organisms, we have to look for ways in which some of them are similar enough so that they can be kept together. Such details of appearance, behavior, form and function are called characteristics। तो what do you mean by characteristics? तो ऐसे details जिसमें appearance, behavior, form and functions वो एक जैसे हो या एक टाइप के हो या थोड़ा बहुत ही डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। नाउ एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने हैंड के 5 फिंगर्स, ठीक है, 5 फिंगर्स ऑन ईच ऑफ आवर हैंड, बट इन टूडेज वर्ल्ड वी लुक एट मैनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, some of the characteristics used hierarchical classifications, as I have already mentioned before. One, complexity of a cell structure. Another is the body structure. Third is mode of nutrition. Fourth, levels of organization of body. And fifth, functional organization। तो complexity of cell structure मतलब क्या कि whether they are prokaryotic or eukaryotic, means made up of single cell या multicellular। So the complexity, अब मैं हर एक को briefly आप लोगों को explain करूंगा कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। So the complexity of cell structure matters first, whether the cell is, जैसे मैंने बताया, prokaryotic or eukaryotic।
फिर इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से मतलब और कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि जैसे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है विथ न्यूक्लियस या उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है या उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है. सो इन यूकैरियोटिक सेल्स वी कैन फर्दर क्लासिफाई that their organisms have membrane bound organelles and are present along with nucleus which efficiently allowed isolated cellular process to be carried out. On the contrary, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में membrane bounded organelles were there and we can have कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो सकता है. ठीक है. Therefore, the biochemical pathways are organized in different ways in both cells to facilitate different modes of cell division and ability to form multicellular organism. This difference is cell structure forms the basic characteristics of classification. तो basic characteristics of classification पहला सेल में हम लोग ये क्लासिफाई करेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. ओके बच्चों, मूविंग अहेड, द सेकंड बेसिक क्लासिफिकेशन इज बॉडी स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एज सिंगल सेल. जैसे मैंने बताया सेल में पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखो, फिर बॉडी स्ट्रक्चर में देखो कि सेल्स कैसे हैं, सिंगल सेल है या मल्टी सेल्यूलर सेल है. बॉडी स्ट्रक्चर चेंज द वेज द सेल वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक अ वॉर्म shows division of labor by forming tissues, organs and organ systems. या अपनी खुद की बात करें, बट जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात हो तो वो होगा आप लोगों का अमीबा, विच विल कैरी या जिसके पास एक ही सेल है एंड विच कैरीज आउट थ्रू ऑल द फंक्शंस थ्रू आउट इन अ सिंगल सेल. Then third is your mode of nutrition. Mode of nutrition मतलब खाना किस हिसाब से खाते हैं. ठीक है, आप लोगों ने वो साइकिल पढ़ी होगी. सबसे पहले आते हैं हर्बीवरस, कार्निवरस, ठीक है, देन ओमनीवरस, लाइक दैट. सो यहाँ पे देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेन वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज हिट्रोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बना सकता हो, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? जिसका खाना वो खुद अपने आप से प्रिपेयर करे तो उसको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे heterotrophic organisms. So mode of nutrition, according to the characteristics, organisms are of two types. One is autotrophic and another is heterotrophic. Autotrophic organisms can make their own food through the process of photosynthesis, that is your plants, while heterotrophic organism depends on autotrophs and other animals for their food, for examples animals and fungi. Then fourth topic is level of organizations of body. So level of body organization is different in different organisms. Like plants have different types of tissues as compared to animals. This is because plants requires anchorage while animals require mobility. In short, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. वेयरएज एनिमल्स जो है वो लोकोमोटिव होते हैं. लोकोमोटिव मींस या मोबाइल मींस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी में वी कैन क्लासिफाई वेदर दे आर स्टेशनरी और आर दे मूविंग. सो प्लांट्स जो है वो कैसे हैं? स्टेशनरी है, इनको बोलते हैं एंकोरेज. वाई एनिमल्स जो है वो मोबाइल है या यू कैन से लोकोमोटिव है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? कि बॉडी की डिजाइन वेरी होती है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि अमीबा हो गया, उनके पास सूडोपीडिया है विच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन. ठीक है, लेकिन
वही चीज ह्यूमन बींग्स में देखो या एनिमल्स में देखो तो दे हैव लेग्स फॉर देयर लोकोमोशन. Humans can run, but plants and trees cannot. This is the result of organization of different organs and organ systems. तो ये था हमारा characteristics used for classification. Again मैं 5 options बता देता हूँ कौन से उसके ऊपर characteristics होती है. One, your complexity of cell structure, that is whether they are prokaryotics or eukaryotics. Then their body structure मतलब सेल किस हिसाब से कौन से हिसाब से काम कर सकते हैं. सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस कर रहा है या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, वो देखेंगे. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर ऑटोट्रोफिक और हीटरोट्रोफिक. Then we have seen levels of organizations of body, means whether they are stationary or mobile. And lastly, functional organization, जैसे अमीबा के legs को सूडोपीडिया बोलते हैं, वैसे ह्यूमंस या एनिमल्स के लोकोमोशन के लिए क्या जरूरी है, लेग्स आर important. ठीक है. So this is the result of organization of different organ and organ system. Okay, moving ahead towards our last topic of the day, and that is this classification and evolution. So what do you mean by classification and evolution? तो ये word जो है ना, evolution is a process by which early organism on the earth diversified into various forms through a slow and a continuous प्रोसेस. तो धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ पे लिविंग क्रीचर्स आने लगे, ठीक है, धीरे धीरे उनका क्लासिफिकेशंस होने लगा. ठीक है. चार्ल्स डार्विन, ये वर्ड याद रखना, ही इज अ साइंटिस्ट. So Charles Darwin first described the idea of evolution in 1859 in his book. उनकी बुक का नाम था The Origin of Species. Okay, some groups of organisms have ancient body designs that have not changed much. These are called primitive or lower organism and have simple life forms. However, some group of organisms have acquired their particular body designs relatively in recent times and are called advanced or higher organisms. तो जैसे जैसे बॉर्न होते गए वैसे वैसे उनका जो है इवोल्यूशंस करने लगे. जो पहले जो बॉर्न हुए होते हैं जिनमें कुछ ज्यादा बॉडी डिजाइन में चेंज नहीं हुआ है तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव. लेकिन जैसे जैसे, या प्रिमिटिव भी बोल सकते हो या लोअर ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये चीज बढ़ती गई, अलग अलग शेप एंड साइज आने लगे, पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन, एक स्पेसिफिक बॉडी डिजाइन होने लगी, तो वो धीरे धीरे उनको एडवांस्ड या तो फिर हायर ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई किया गया. ठीक है. Since the complexity in design is increasing over evolutionary time, thus it is correct to say that all older organisms are simple while younger organisms are complex. This allows us to connect the idea of evolution with क्लासिफिकेशन. सो जो पुराने वाले जो पहले प्रिमिटिव थे उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, इवोल्यूशन बढ़ता गया, वो नए या हायर या एडवांस ऑर्गेनिज्म को जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स बनता गया. और इसी के साथ एक आइडिया आया कि इवोल्यूशन और फिर क्लासिफिकेशन को दोनों को साथ में कनेक्ट किया जा सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी हैव completed 2 of your major topics from textbook. 7.1, that is classification, and second is 7.2 classification and evolution. Now we will be seeing from tomorrow this hierarchy. This is very hierarchy of classification is very important. We will be seeing tomorrow. That's it for today. Thank you very much bachcho. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching, Surat, Gujarat. If you have gone through this entire video, please do like, share with your friends, comment, and do not forget to subscribe my channel and bell icon as well. Press the bell icon so that you cannot miss any kind of videos. Thank you very much. Tada, bye bye.